चल अब मैच द फॉलोइंग के थर्ड क्वेश्चन में हम लोग द वैल्यू ऑफ log 32 to the root 2. So log 32 to the root 2. सबसे पहले तो 32 को मैं 2 के पावर्स में एक्सप्रेस करने वाली हूँ. So that's nothing but log of 2 raised to 5 to the base root 2. Now this 2 can be rewritten as रूट 2 का स्क्वायर है. बाय डिफॉल्ट 2 जो है वो रूट 2 का स्क्वायर है एंड द पावर ऑफ 5 विल रिमेन एज इट इज टू द बेस रूट 2. अब आपको इंडाइसेस की याद आएगी. a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू mn और उस लॉजिक से we will multiply these two numbers. So which is equal to log of root 2 raised to 10 to the base root 2. Once these two are equal, the answer will be its index, which is nothing but 10. And yes, definitely we have that in the column B. On that note, let's go for fourth question. It's log of 0.0001 to the base 0.1. कुछ नहीं, easy है. Start taking 0.1 के powers on your calculator और ढूंढ लीजिए कि वो उसका कौन सा पावर है. So it's actually very easy. And पहले ही बता दूं कि एक मिसप्रिंट है वहां पर. चल so log of 0.0001 to the base 0.1. Now if you take it on the calculator and verify it from there, clearly this number is fourth power of 0.1. Take it on the calculator just to verify. That brings me 0.1 raised to 4 to the base 0.1. Once these two are the same, my answer is its index and the log word is gone, and hence the correct option is not -4 actually, it's going to be +4. Fair. अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन में हूँ. Log of 0.001 to the base 10. Now I'm going to modify this term. See मैं वो कैसे करने वाली हूँ. That is nothing but log of 1/1000 to the base 10. करके देखिए on your calculator. 1/1000 इतना ही करके रखिए, देखिए कितना आ रहा है. 1 divided by 1000 correct. Now this 1000 in the denominator carries power equal to 1. मैं ना अब इसे न्यूमरेटर में लाऊंगी तो इट्स पावर विल बी इक्वल टू -1. रूल्स ऑफ इंडाइसेस याद कीजिए. 1/a raised to m will be equal to a raised to -m. As we shift the powers from numerator to denominator or vice versa, their signs will change. Okay, come back to the point. This 1000 can be expressed in the powers of 10. कैसे? 1000 is nothing but 10 raised to 3 and उसके सर पे -1 ऑलरेडी है ही.
और ये आएगा टू द बेस 10. अब a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू mn. सो इन दोनों का कीजिए मल्टीप्लीकेशन. दैट गिव्स मी log ऑफ 10 रेस टू माइनस 3 to the base 10. Once these two are the same, the answer will be the index, which is nothing but minus 3. And yes, it's one of the options. Very well. अब मैं जाने वाली हूँ नीचे मैच द फॉलोइंग्स में. अब क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी. log of x to the base 3 is equal to minus 2. अब क्या करेंगे? If I don't want log and I want to purely express this particular situation in the form of indices only, तो क्या करूँगी? ये 3 को यहाँ भेजूंगी एंड माइनस 2 को उसका पावर बना दूंगी. उसके साथ ही log वर्ड चला जाएगा. So x will be equal to 3 raised to minus 2. अब अगला स्टेप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में है 3 raised to minus 2. I will bring that to denominator. With that पावर हो जाएगी पॉजिटिव. That is 3 raised to plus 2. अब 3 स्क्वायर ये जो डिनोमिनेटर में है उसका वैल्यू होगा 1/9. And yes, I have that, which is I think second one. Yes. So that was about question number 6. अब चलेंगे 7 की तरफ. चलो start writing question number 7. log of x to the base 8 is equal to minus 2/3. आपको फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ x. x को यहीं छोड़ते हैं और ये सिचुएशन अगर मुझे सिर्फ इंडाइसेस को यूज करके एक्सप्रेस करनी है तो मुझे 8 को यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा एंड माइनस 2/3 होगी उसकी पावर. सो इट विल लुक लाइक x इज इक्वल टू 8 raised to minus 2/3. Therefore, x is equal to, अब देखो ये न्यूमरेटर वाली चीज जो है I will bring that to denominator. So the power will become positive. 8 raised to 2/3. अब 8 raised to 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write this in the form of cube root of 8 square. How do we write that? याद कीजिए, वी लर्न दैट इंडाइसेस के चैप्टर में a raised to m by n is nth root of a raised to m. ओके, तो वही लॉजिक यूज किया है, विच इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर होगा 64 एंड 64 का क्यूब रूट किस चीज का क्यूब है? 64 इट्स 4 का. करके देखिए अपने कैलकुलेटर पे, तो मेरा आंसर आएगा 1/4 जो है यहाँ पर. सो वी आर डन विथ 6th एंड 7th. अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. चलो, log of 1/25 to the base x
is equal to minus 1 by 2. So my first step is to get rid of that log word and x को करूंगी मैं शिफ्ट यहाँ पर. So 1/25 will be equal to x raised to minus half. अब आगे चलते हैं. तो 1/25 is equal to 1/x raised to plus half. पिछले दो प्रॉब्लम्स में भी ये प्रॉपर्टी यूज की है, आई होप आपको याद है. अब देखो, therefore 1/25 is equal to, अभी x रेस टू हाफ का मतलब क्या है? बेसिकली दिस इज किसी चीज का स्क्वायर रूट होगा ये. ओके, या तो हम इस रूट से जा सकते हैं या फिर अब इसके आगे रेसिप्रोकल ले सकते हैं. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना. सो जो 25 डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और RHS में x रेस टू हाफ है डिनोमिनेटर, वो बन जाएगा न्यूमरेटर. फेयर इनफ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो ये कैसे दिखेगा? 25 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x रेस टू हाफ का स्क्वायर, है ना. सो 25 का स्क्वायर इज 625. x रेस टू हाफ रेस टू 2 है, तो a रेस टू m रेस टू n यूज करेंगे. सो x रेस टू हाफ इंटू 2, इनका मल्टीप्लीकेशन. So 625 will be equal to x raised to 1. So x will be equal to 625. और ये रहा आंसर. So 8 has been done. अब 9th करेंगे. Okay. Log of x to the base 1000, 10,000 equal to minus 1 by 4. Step 1 will be to get rid of the word log. So 10,000 goes on the right hand side and minus 1 by 4 will become its power. So x is equal to 10,000 raised to minus 1 by 4. Okay. अब जो पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव में है ना, वो डिनोमिनेटर में हो जाएगी नेगेटिव में, और अगर ऑलरेडी नेगेटिव है जैसा इस सिचुएशन में है तो होगी अब पॉजिटिव. ओके, सो x इज इक्वल टू 1/10,000 रेज टू 1 by 4. तो आप लेंगे 4th रूट ऑफ 10,000, है ना. रेज टू 1 by 4 का मतलब क्या है? 4th रूट होता है. इंडाइसिस के फॉर्मूले जो है वो इंडाइसिस से भी ज़्यादा लॉग में काम आते हैं. ओके, चलो अब वैसे ये चीज़ के बारे में मुझे पता है क्या है, हिंट है. ये जो 10,000 है दैट इज नथिंग बट 10 रेज टू 4. ये रेज टू 1 by 4 को मैं एज इट इज लिखने वाली हूँ. करके देखिए अपने कैलकुलेटर पर 10 रेज टू 4 क्या आता है. इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 10,000. अब क्या करेंगे आप? a रेज टू m रेज टू n करेंगे a रेज टू mn. सो 4 and 1 by 4 का होगा मल्टीप्लीकेशन. सो ये हो जाएगा 1/10 रेज टू 4 into 1 by 4. This gets cancelled and my final answer will be 1 by 10. ये रहा. चलो अब 10th में जाएंगे. Log of x to the base 4 is equal to 1 by 4. तो आपको x की वैल्यू ढूंढनी है. अगेन we will get rid of that log by sending 4 on right hand side. So x is equal to 4 raised to 1 by 4. Clear?
अब देखो जो 4 है ना, दिस 4, उसका जरा एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। बेसिकली 2 स्क्वायर होता है 4, एग्रीड, एंड दिस 2 इज नथिंग बट रूट 2 का स्क्वायर, जिसके सर पे का जो पावर है वो एज इट इज लिखूंगी मैं, सो दैट इज इक्वल टू 4। अब a रेस टू m रेस टू n यूज करना है, सो इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर रूट 2 रेस टू 4 आएगा इक्वल टू 4। और अब यही चीज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी यहां पर, सो 4 की जगह आई बी राइटिंग रूट 2 रेस टू 4 रेस टू 1/4, देयरफॉर x is equal to root 2 raised to, which property will you use? A raised to m raised to n is a raised to mn, तो 4 into 1/4 करेंगे, 4 gets cancelled and x is nothing but root 2, which is yes in column B यहाँ पर, so that's nothing but root 2। चलो अब थोड़ा ट्रू और फॉल्स में चलेंगे। log 3 plus log 5 is log 15, ये तो करेक्ट होगा क्योंकि बीच में है प्लस साइन, आई एम अज्यूमिंग कि दोनों के बेसिस सेम होंगे, तो log a प्लस log b होता है log ऑफ ए बी, सो यूजिंग दैट ये आ जाएगा log ऑफ 3 इंटू 5 एंड दिस इज log 15। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m इज इक्वल टू log ऑफ ए बी टू द बेस m। इजी है। अब ये वाला करते हैं, द वैल्यू ऑफ, कुछ लंबा चौड़ा चीज दिया है और उस चीज का वैल्यू 2 होता है क्या, ये पूछा है, देखते हैं। तो log टू द बेस 2 और भी अंदर है, ओके। अब पहले हमने कुछ जो प्रॉब्लम्स किए थे ना, वहां पर इधर ये 81 वाला वैल्यू मिसिंग होता था, उसकी जगह x होता था, एंड इन दैट केस वी वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द आउटर मोस्ट ब्रैकेट, यानी कि ये जो बाहर वाला लॉग है वहां से एलिमिनेशन की शुरुआत करते थे। अगर हमें ये वाला वैल्यू दिया है, मतलब x मिसिंग नहीं है, तो हम इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे। ये पूछा है कि 2 होता है क्या, है ना, ब्रैकेट से कौन से शुरुआत करेंगे, इनर मोस्ट से, यानी कि log ऑफ 81 टू द बेस 3 विल बी द फर्स्ट ब्रैकेट आई विल सॉल्व, ओके। तो बेसिकली बाहर वाले ऐसे ही लिख देती हूँ क्योंकि वो हम अभी सॉल्व नहीं करने वाले हैं। अब 81 3 का कौन सा पावर होता है, 4th पावर होता है, ओके। Once these two are the same, the answer is index, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह अगले स्टेप में मैं 4 लिखने वाली हूँ। हाउ डू आई डू दैट? log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2, अब उस ब्रैकेट की जगह सिर्फ 4 ही लिखूंगी, फेयर इनफ। अब 4 2 का सेकेंड पावर है, तो देखो आंसर क्या आएगा, ये आएगा log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 2। एक बार ये दोनों सेम आ गए तो द आंसर इज इंडेक्स, और अगली बार इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम बस 2 लिखने वाले हैं, सो दैट गिव्स मी log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब अगर ये दोनों सेम होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, 1, और ये रिजल्ट भी है log a टू द सेम बेस, यानी कि log a टू द बेस a, अगर ये आपको याद आ रहा है, आई एम श्योर आ ही रहा है, log a टू द बेस a ये 1 होगा,
and hence my final answer is going to be 1. So ये 2 नहीं आ रहा है, ये 1 आ रहा है actually. So the given statement is false. Okay. Go to question number 10 first and फिर उल्टा जाएंगे. So question number 10 is, पहले 10 की तरफ जा रही हूँ. Logarithm of a same number, ये sum नहीं है, same number for different bases are different. क्या मतलब है इसका? नंबर सेम होने वाला है, जैसे log 16 and log 16 लेने वाले हैं, लेकिन in the first case my base is 2 and in the second case my base is 4. तो वो बोल रहे हैं इन केसेस में अगर आंसर्स x एंड y हैं तो ये अलग होंगे. देखते हैं अलग है या नहीं है. सो 16 क्या होता है? 2 raised to 4 to the base 2, क्योंकि 16 को हमेशा बेस के पावर में आपको लिखना पड़ेगा. वंस दीज टू आर द सेम, द आंसर इज आपका इंडेक्स, तो ये 4 है. इस केस में बेस 4 है तो 16 को 4 की पावर में लिखेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर टू द बेस 4, बिकॉज 4 स्क्वायर होता है 16. अब ये दोनों सेम आ गए तो मेरा आंसर इज इंडेक्स, सो 2 है. सो यस, अगर नंबर सेम भी हो लेकिन अगर बेसिस अलग है, जैसे कि नंबर इस केस में सेम ही है 16 है, लेकिन पहली सिचुएशन में बेस 2 है और इन द सेकेंड सिचुएशन द बेस इज 4, तो ऑब्वियसली आंसर्स अलग आए हैं. इन द फर्स्ट प्लेस इट इज 4 एंड इन द सेकेंड केस इट इज 2, सो द आंसर्स आर डिफरेंट. Okay, the decimal part of the value of logarithm of a number is called as mantissa. अब ये बेसिकली क्या चीज़ है? कभी कभी लॉग ऐसा होल नंबर नहीं आता है, सो कभी कभी वो लॉग टेबल जो लोग स्कूल में यूज कर चुके हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. कभी कभी लॉग कुछ ऐसा दिखता है. सो यस, ये हो गया आपका डेसिमल के बाद का पार्ट, डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट. इसे मैंटिसा बोलते हैं और पॉइंट के पहले वाले पार्ट को इंटीग्रल जो पार्ट है, जो इंटीजर है एक्चुअली, उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. सो ऑन दैट नोट 8 एज वेल एज 9 आर गोइंग टू बी ट्रू. सो डेसिमल पॉइंट के बाद का वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मैंटिसा एंड पहले वाला पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक. सो दैट्स करेक्ट. 7. Logarithm of a number which is not equal to 1 is itself as base is 0. So logarithm of a number 1 को छोड़ के 1 नहीं पकड़ना है. इन शॉर्ट वो लोग पूछ रहे हैं अगर किसी भी नंबर का लॉग और उसका बेस दोनों सेम ही है तो क्या आएगा आंसर? तो log a टू द बेस a हमेशा 1 आता है एंड इसीलिए 0 नहीं आएगा बल्कि ये 1 आएगा. सो ये एक्चुअली फॉल्स है. 6th देखते हैं. द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0. ये करेक्ट है. log 1 टू एनी बेस मतलब x is always going to be equal to 0. ये करेक्ट है. अपने रिजल्ट्स में देखिए ये करेक्ट है. ओके. फिफ्थ में है लॉगरिथम विद अ बेस e. इट्स कॉल्ड एज कॉमन लॉगरिथम, कॉम लॉगरिथम. दिस इज फॉल्स. ये बेसिकली अब सिलेबस से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है. दिस इज फॉल्स. 4. लॉगरिथम्स विद अ बेस 10 इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम.
एज वेल एज फॉल्स, क्योंकि बेस 10 होता है तो उसे कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और अगर ई होता है तो नेचुरल बोलते हैं, तो ये उल्टा है। सो ई वाले को नेचुरल बोलेंगे और 10 वाले को कॉमन बोलेंगे। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड देखते हैं आप। log of 324 to the base 1 upon 3 root 2 is it going to be equal to -4, ये पूछा है। चलो let's start sorting down the situation, not that difficult actually। okay, so log of 324 बेस है 1 अपॉन 3 रूट 2। अब देखो व्हाट एम आई गोइंग टू डू। 1 अपॉन 3 रूट 2 इज बेसिकली गोइंग टू बी 1 अपॉन, ये 3 को अंदर लेके जाएंगे, सो इट विल लुक लाइक 3 इंटू 3 इंटू 2। आई होप ये रूट वाली सिचुएशन आपको करनी आती है। सो ये क्या आएगा, ये आएगा रूट 18, 1 अपॉन रूट 18। ओके, अब क्या करेंगे, वैसे मुझे पता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो मैं चेंज ऑफ बेस यूज करने वाली हूँ। नया बेस होगा मेरा 18, तो मैं चेंज ऑफ बेस करके क्या करूंगी, log ऑफ 324 टू द बेस 18 अपॉन log ऑफ 1 अपॉन रूट 18 टू द बेस 18। अब न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 18 का स्क्वायर होता है 324, तो वो तो हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 18 स्क्वायर टू द बेस 18 अपॉन log ऑफ, अब ये 1 बाय रूट 18 है ना, उसका क्या करना है देखते हैं। दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 अपॉन 18 रेज टू हाफ, है ना, स्क्वायर रूट यानी कि रेज टू हाफ होता है। नाउ द पावर, जो डिनोमिनेटर है इसमें इस वक्त पॉजिटिव दिख रहा है, ये न्यूमरेटर में नेगेटिव दिखेगा। सो ये हो जाएगा 18 रेज टू माइनस हाफ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 18 रेज टू माइनस हाफ, मैंने रिप्लेस किया है 1 अपॉन रूट 18 को, बेस मेरा है 18। शांति से और हर स्टेप को समझ के करेंगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। विच इज इक्वल टू, वंस दीज टू आर द सेम, माई आंसर इज इंडेक्स, जो कि आएगा 2। फिर से ये दोनों सेम है तो आंसर है 1 मिनट, लॉग नहीं लिखना चाहिए था। ओके, सो ये आएगा 2 और डिवाइडेड बाय, वंस दीज टू आर द सेम, माई आंसर इज इंडेक्स विच इज माइनस हाफ, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू। अब ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर वाली चीज होगी उल्टी, इन्वर्टेड, सो ये आएगा -2 अपॉन 1। 2 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -4 and my answer is going to be -4. With that, statement number 3 क्या है, true है। So I hope true or false is clear. Match the followings भी हो गया है। अब fill in the blanks बाकी है, उसके लिए I should be recording the next session. So thank you so much for now and all the best.